तो नेक्स्ट टॉपिक इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो दो डेफिनेशन है। फर्स्ट वन, फॉर एन इवेंट A and B if P of A by B equal to A and P of B by A equal to P of B, then A and B are independent event. There is no condition. Second, if A and B are independent, then P of A intersection B equal to PA into PB. So आप दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। इंडिपेंडेंट दैट मीन्स देयर इज नो कंडीशन। नाउ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तो इट्स सेटिस्फाइंग थ्री कंडीशंस। P of A intersection B equal to PA into PB, P of B intersection C equal to PB into PC, P of A intersection C equal to PA into PC, and last P of A intersection B intersection C equal to PA into PB into PC. Then it is called mutually independent events. Mutually independent events. Now multiplication. Multiplication rule, तो that is nothing but the conversion of the given term. कैसे? P of A intersection B intersection C, so that is a three event. Consider as a child, first child, second child, third child. तो first child is independent, वो आप समझ सकते हो। Second child, when the second child gets, if the first event is already exist. Now when the third child is exist, if first two events are exist. So this is the way to learn the formula. ABC becomes the three child, first child is independent. When we call second child, if the first one is exist given, third one is where exist if first two are exist. Okay, तो अच्छे से फॉर्मूला देख लीजिएगा। अब इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट इवेंट, मल्टीप्लिकेशन रूल से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, E and F be a event P of E 3 by 5, P of E F 3 by 10, E intersection F 1 by 5. Then what about E and F? Is it independent or not? Independent or not, that means if it is independent, P of E intersection F equal to PE into PF. So first all values are given, so PE into PF, what is PE? 3 by 5, 3 by 10, 9 by 50 is not equal to P of E intersection F. So that is PE into PF.
ओके, चलिए नेक्स्ट वन। देखिए वैल्यूज देखिए सारी, P of A 3/5, P of B 1/5, find P of A intersection B, where given A and B are independent. So this one is given है, that means P of A intersection B equal to PA into PB given. PA 3/5 into 1/5, 3/25 is P of A intersection B. Next one, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। टू इवेंट्स A and B are given and both are independent event। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए P of A by B equal to P of A, P of B by A equal to P of B। तो आराम से आप P of A by B equal to what is the answer 0.3। फर्स्ट ये आंसर आ गया थर्ड टर्म का। P of B by A equal to P of B है, तो what is P of B 0.4। Now P of A intersection B independent है, that means P of A intersection B equal to PA into PB। तो PA एंड PB की वैल्यू ले लीजिए 0.3 इंटू 0.4, तो 0.12 P ऑफ A इंटरसेक्शन B का आंसर। नंबर सेकेंड, P ऑफ A यूनियन B, PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A 0.3, P ऑफ B 0.4 and P ऑफ A intersection B 0.12। तो that is 0.70 minus 0.12, आंसर इज 0.58। कभी भी कोई भी प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 या लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, A and B are two events, PA PB is given, P of A intersection B 1/8, then what is not A and not B dash? चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल PA PB P of A intersection B है, तो देख लीजिए क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना है P ऑफ नॉट A यानी A डैश, एंड यानी इंटरसेक्शन, नॉट B यानी B डैश। तो चलिए इसका डी मॉर्गन्स लॉ से P ऑफ A यूनियन B होल डैश 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B 1 माइनस इसका कंप्लीट PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B चाहिए। अब देखिए तीनों वैल्यूज आपके पास है, तो यस, तो 1 माइनस PA 1/4 1/2 माइनस 1/8। LCM ले लीजिए तीनों का, तो दैट इज 8, तो 2 + 4 - 1 अपॉन
8. Then so 1 minus 6 minus 1, 5 by 8, 8 minus 5, 3 by 8. That is the answer of not A and not B. Complete? Next one. चलिए न्यू एग्जाम्पल. देखिए अभी P of A 1/2, P of B 7/2. अब नॉट A और यानी यूनियन नॉट B इक्वल टू 1/4. देन इज इट इंडिपेंडेंट? तो इंडिपेंडेंट के लिए A इंटरसेक्शन B चाहिए. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट नॉट A डैश यूनियन नॉट B B dash 1/4 गिवन. क्लियर? चलिए अब A डैश यूनियन B डैश. तो डी मॉर्गन्स लॉ तीनों का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए. A इंटरसेक्शन B होल डैश इक्वल टू 1/4. नाउ कॉम्प्लीमेंट इवेंट 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/4. अब इंटरचेंज कर दीजिए दोनों को. सो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B. सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? दैट इज 3/4. अब A इंटरसेक्शन B 3/4 हो गया. तो चेक कीजिए इन दोनों का प्रोडक्ट 3/4 हो रहा है. So first PA into PB 1/2 into 7/12 7/24. Is it both are same? No. So not equal to P of A intersection B. So PA into PB दोनों सेम नहीं है. If both are not same, A and B are not independent. A and B are not independent. देख लीजिए अच्छे से एक बार. नेक्स्ट वन. गिवन क्या है? गिवन दैट इवेंट A and B P of A 1/2 A यूनियन B गिवन है, P of B गिवन है. कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो, इंडिपेंडेंट मल्टीप्लिकेशन रूल कोई भी रूल चल रहा है, प्रोबेबिलिटी में पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट कीजिए. फाइंड P, पहले P फाइंड आउट कीजिए. और P पे नाउ इन द कंडीशन ऑफ P म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग A इंटरसेक्शन B इक्वल टू नल सेट. इंडिपेंडेंट यानी PA इंटू PB इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B. सो पहले ही आप P ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट कीजिए. सो P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. 3/5 इक्वल टू 1/2 प्लस 3/5 प्लस P माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. नाउ
इसे यहाँ पे सब्जेक्ट कर दीजिए। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P प्लस 1/2 माइनस 3/5, इसे यहाँ पे ले लीजिए। सो P दैट इज 3/5, 5 minus 3, 2/2 into 5. So answer is what? P plus 1/5. फिर से एक बार, P of A union B, PA plus PB minus P of A intersection B. A union B 3/5 है, 1/2 plus P, put all this value P of A intersection B. अब इसे सब्जेक्ट कर दीजिए। P of A intersection B पॉजिटिव, नाउ P plus 1/2 minus 3/5, 5 minus 3, 5 minus 6 है, yes, 5 minus 6 upon 2 into 5 minus 1/10. So this is P of A intersection B. Now, first question, mutually exclusive. That means A intersection B equal to null set. P of A intersection B equal to 0. What is P of A intersection B? P minus 1/10 equal to 0. So P equal to 1/10. Now second, independent event. Independent, that means P of A intersection B equal to PA into PB. चलो, A intersection B, P minus 1/10, PA 1/2 into P. Now interchange two term, P minus 1/2 P equal to 1/10, P/2 equal to 1/10, 2 5s are, so P equal to 1/5, P equal to 1/5. नेक्स्ट वन देखिए, पूरा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. व्हाट वी आर चेकिंग? वी आर चेकिंग दैट इज इट इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. वन कार्ड इज ड्रॉन, यानी सिलेक्ट वन कार्ड आउट ऑफ 52 cards. Now first common n out of 52 select one card. 52 C1, n equal to 52. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. इवेंट E, कार्ड इज अ स्पेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी साथ में ही लिख देंगे. P ऑफ E, स्पेड के कार्ड्स 13 आउट ऑफ 52, कोई भी कैंसल आउट नहीं करेगा. सेकेंड इवेंट F, कार्ड इज एन एस, कार्ड इज एन एस, सिलेक्टेड कार्ड इज एन एस. P of F, तो टोटल 4, आउट ऑफ 4 1 कार्ड सिलेक्ट कीजिए अपॉन 52 आउट ऑफ 1. चलिए E इंटरसेक्शन F, अब कार्ड
स्पीड का भी होना चाहिए एंड एस होना चाहिए, तो दैट इज ओनली 1/52. सो नाउ अब इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए, ई इंटरसेक्शन ई इंटू एफ, 13 into 4 upon 52 into 52, 1/52. So P of E intersection F, PE into PF. नंबर सेकेंड, चलिए नंबर सेकेंड सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट. सेकेंड, इवेंट ई, कार्ड इज ब्लैक. नाउ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर में टोटल 26 कार्ड्स है. सो P of E and select one, तो 26 C1 upon 52 C1, तो this one is. Now event F, card is a king, card is king. So there are 4 king, select one out of 52 C1. चलिए E इंटरसेक्शन F, कार्ड अब क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए, बट विच कलर, ब्लैक कलर. तो ब्लैक कलर हैविंग अ 2 शेप, तो देर आर पॉसिबिलिटी ऑफ 2C1 upon 52 C1, 2/52. So now PE into PF, 26/52 into 4/52, 26 twos are 2 twos are, so that is nothing but P of E intersection F. आंसर ई इंटरसेक्शन एफ ही आ रहा है. सो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट. इंडिपेंडेंट इवेंट्स. थर्ड वन, नंबर थर्ड, चलिए ये वाला. Now card is drawn king और queen, दोनों का एडिशन. कार्ड इज king और queen. So P of E 8/52. How it can be? 4 king, 4 queen, 4 plus 4, 8, 4 plus 4, 8. Event F. Card is queen or jack. So P of F, queen 4, again jack 4, 8/52. Now E intersection F. So card is common. Card is queen. चलो तो क्वीन वाले कितने कार्ड्स होंगे? 4 कार्ड्स out of 52. So now PE into PF का आंसर 4/52 आता है, then it is independent. So PE
8/52 into 8/52, that is 64/52. So that is nothing but the P of E intersection F. Hence E and F are not independent event. ओके, सो अच्छे से तीनों केस आपको समझ में आ गए होंगे। देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट वन, a die is thrown. डायस थ्रोन करते हो तो टोटल आउटकम्स आर 6. इवेंट ई, नंबर मल्टीपल ऑफ 3. So there are element 3 and 6. 2 element, तो probability 2/6. That is first one. Now event F, number is even. Number is even. 2, 4, 6. 3/6. Now E इंटरसेक्शन F, दोनों में कॉमन एलिमेंट देखिए तो ओनली वन, दैट इज 6. सो P of E intersection F 1/6. चलिए अब लुक एट द क्वेश्चन. Then find whether E and F are independent. E and F independent है तो दोनों का प्रोडक्ट चेक कर लीजिए. PE into PF 2/6 into 3/6. 2 3s are 6. Answer 1/6 and 1/6 ही P of E intersection F है. PE into PF. So hence E and F are independent event. E and F are independent event. I hope so आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ऑलवेज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए. प्रोबेबिलिटी है, आप क्या सोच रहे हैं और मीनिंग क्या निकल रहा है, दोनों डिफरेंट हो जाएगा. नेक्स्ट वन, अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस. तो सैंपल स्पेस 1 1 से लेके 6 6, n equal to 36. Event A, odd number on first throw. चलिए फर्स्ट थ्रो पे ऑड नंबर चाहिए तो दैट इज 1 1 से लेके 1 6, 3 1 से लेके 3 6, 5 1 से लेके 5 6, so P of A 18/36, 18/36. Event B
odd number on second throw. चलिए on second throw, तो that is 1 1 1 3 1 5 2 1 2 3 2 5 3 1 3 3 3 5 4 1 4 3 4 5 5 1 5 3 5 5 6 1 6 3 6 5। तो लास्ट वाली पोजीशन ये देखिए, सेकेंड थ्रो, ये सारी ही पोजीशन सेकेंड थ्रो इज ऑड नंबर। तो टोटल कितने एलिमेंट हुए? 6 12 18। तो P ऑफ B 18/36। नाउ नेक्स्ट वन, A intersection B. A intersection B, that means what? First पे भी odd, second पे भी odd. Odd number on both throw. चलिए ऑब्जर्व कीजिए, दोनों पे odd हो कॉमन में, तो फर्स्ट 1 1, देन 1 3 1 5, 2 वाली सीरीज नहीं आएगी, 3 1 3 3 3 5, 4 नहीं आएगा, 5 5 1 5 3 5 5। तो टोटल एलिमेंट आर 9/36, 3 + 3 + 3, 9/36। नाउ इन दोनों का प्रोडक्ट 9/36 आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन, कोई डिफरेंट कलर, P of A into P of B, 18/36, 18/36, 18 2s are 2 9s are, सो 9/36, और वही आंसर P of A इंटरसेक्शन B है, तो दैट इज PA इंटू BB। A and B are independent event, or independent event। ओके, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, एक बार और देख लीजिए।